Hello, this is Mohammad Yasir Arafat and we are discussing O-Level Physics 5054. And in this video, we will be discussing our past papers questions related to the scalars and vectors. We will be starting from past paper 1. And this question has been taken from May-June paper of 2015 and from series 1. So in this question, they has asked us, is mass a scalar or a vector? And is acceleration a scalar or a vector? So यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि मास स्केलर है या वेक्टर है, साथ साथ एक्सीलरेशन स्केलर है या वेक्टर है. अगर हम मास और एक्सीलरेशन को देखें इन द स्केलर्स एंड वेक्टर्स एग्जाम्पल, तो मास को प्लेस किया गया था इन स्केलर्स और एक्सीलरेशन को प्लेस किया गया था इन वेक्टर्स. इफ वी सी द ऑप्शंस, सो ऑप्शन नंबर ए में बताया जा रहा है कि स्केलर्स एंड स्केलर्स यानी मास स्केलर है और एक्सीलरेशन स्केलर है. मास तो स्केलर है बट एक्सीलरेशन कैन नॉट बी अ स्केलर क्वांटिटी बट बिकॉज इट नीड्स डायरेक्शन टू बी स्पेसिफाइड. सो ऑप्शन ए कैन नॉट बी ट्रू. नाउ इन ऑप्शन बी स्केलर्स एंड वेक्टर्स बताया जा रहा है, दैट मीन्स के मास इज अ स्केलर एंड एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर. So here acceleration को direction needed, that is why it can be placed as a vector quantity, and mass has no direction so it can be placed as a scalar quantity. So option C is a vector, that is बताया जा रहा है कि mass is a vector quantity and acceleration is a scalar quantity. So this cannot be true at all. Mass vector हो ही नहीं सकता, ना scalar vector हो सकता है. And option D is vector, mass is a vector and acceleration is a vector. So mass तो vector हो ही नहीं सकता because it has no direction, but acceleration is a vector quantity because it has some directions. So यहाँ पे अगर ऑप्शंस के ऊपर अगर हम गौर करें तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास, ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन एंड अदर ऑप्शंस आर द डिस्ट्रैक्टर्स. डिस्ट्रैक्टर्स आमतौर पर प्लेस किया जाता है टू चेक योर नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी. Now second question is taken from May-June exam 2015 series 2 and they had asked us which quantity is a scalar. यानी जो given option है इनमें से कौन सा स्केलर है वो से फाइंड आउट करना है. अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं, दैट इज एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन नीड्स डायरेक्शन टू बी स्पेसिफाइड सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स also needs direction to be specified so it is also a vector quantity. Temperature does not need any direction so it is not a vector quantity. And velocity, option D, is a vector quantity because it needs directions to be specified. So that means we are having C as, that is temperature, as correct option, and other all the distractors are the vector quantities. In the similar way, in the next question that is taken from May-June 2016 series 1. So इसमें बताया जा रहा है कि the diagram shows arrows representing two vector quantities. So यहाँ पे आके इस तरह क्वेश्चन में हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बॉडी ऑफ द क्वेश्चन क्या है. And then main question. See, body of the question is giving you the complete information regarding the scenario. So इसमें हमें बताया जा रहा है कि डायग्राम है जिसमें बताया गया कि दो एरोज हैं और ये एरो रिप्रेजेंट कर वेक्टर क्वांटिटी को. फिर बताया जा रहा है which diagram shows a resultant R of these two vectors, यानी इन दोनों रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का कौन सा वेक्टर शो करेगा इन दी given options. Given options A, B, C, D को अगर हम देखें तो कि ये complete shape बन रहा है parallelogram का shape. So that means कि you need to follow parallelogram method of addition of vectors by using head to tail rule concept. So इसके लिए याद रखो हमेशा
when you are following parallelogram method, you need to select all the possible options जो कि जहाँ पे वेक्टर्स जो है स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द सेम ऑरिजिन. सो अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दे आर नॉट starting or they are not originating from the same point. The point of origin for the both vectors are different at this case, so it cannot be taken as answers. Option A and B. See, यहाँ पे देखो origin of दोनों वेक्टर क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है. सो ऑप्शन ए और बी को पहले ही हमने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शंस. फिर हम देखते हैं option C and D both has the same point of origin. इन दोनों का सेम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है. दोनों जगह पे सेलेक्ट किया गया है किसको, डायगोनल को. दोनों जगह में ड्रॉ किया गया है डायगोनल को एज अ रिजल्टेंट वेक्टर. बट याद रखो हमेशा, resultant vector in a parallelogram should be drawn from the origin of two vectors. It should not be drawn from the one head of the vector to the other head of the other vector. ठीक है. So correct option को देखा जाए तो it can be option D, because यहाँ पे जो option D है बताया जा रहा है कि the origin of resultant vector will always be starting from the point of origin for the individual vectors. So the correct option is option D. Now in the next question, in the other question, we can see that Mei Jun से ये लिया गया है from 2016 series 1, and the question is, that is question number 3. The diagram shows the resultant vector of the diagram shows the resultant of 3 Newton force and 4 Newton force acting at a point. 3 Newton force और 4 Newton force एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है. जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं इस डायग्राम को कि यहाँ पर एक पॉइंट पर जो ये डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एंड दे बोथ आर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पोजीशन. व्हेन दे आर बोथ ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पोजीशन, बाय दैट केस यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर भी ड्रॉ किया गया सिमिलर वे में फ्रॉम द ऑरिजिन. सो आगे बताया जा रहा है द एंगल बिटवीन द 3 Newton force and the 4 Newton force can be any value from 0 to 90. तो ये वैल्यू जो है एंगल का वो कुछ भी हो सकता है. सो रिजल्टेंट वेक्टर में एंगल का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों एंगल्स के वजह से, एंगल के फॉर्मेशन की वजह से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़रूर इंक्रीज या डिक्रीज होगा. सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन. सो व्हाट इज द मेन क्वेश्चन? The main question is which value of r is not possible. इनमें से कौन सा वैल्यू ऑफ r जो है पॉसिबल नहीं है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर की कौन सी वैल्यू जो पॉसिबल नहीं है. रिमेंबर वन थिंग, रिजल्टेंट वेक्टर जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स when you are following head to tail rule method by parallelogram. head to tail rule by parallelogram method. ठीक है. जब पैरेललोग्राम मेथड को फॉलो कर रहे हो, बाय दैट केस यू कैन नॉट हैव द रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू द सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स. सो दैट मीन्स के 4 + 3 7 शुड नॉट बी पॉसिबल. बट पॉसिबल क्या हो सकता है? इस गिवन डायग्राम में अगर देखें तो एक जो इंडिविजुअल वेक्टर है, एक है 3 न्यूटन, एक है 4 न्यूटन. The resultant vector can become equal to the given vectors which is the largest one. इनमें से largest one कौन सा है? 4 Newton. So it can be equal to the 4 Newton, but it cannot be equal to the 3 Newton force. So यहाँ पे दो बातें हो गई. एक तो resultant vector जो है दोनों individual vector के सम के इक्वल नहीं होगा, ठीक है. और अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है अनइक्वल है, इनमें से जो रिजल्टेंट वेक्टर है कैन नॉट बी इक्वल टू द स्मॉलर
smaller magnitude vector. ठीक है? So in the given option बताया गया है कि ऑप्शन ए दैट इज 4 न्यूटन जो कि है लार्जेस्ट वेक्टर. इट कैन बी इक्वल टू द लार्जेस्ट वेक्टर एज वी हैड सेड अर्लियर. 5 न्यूटन भी पॉसिबल है, 6 न्यूटन भी पॉसिबल है. बट रिमेंबर कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 7 न्यूटन के इक्वल पॉसिबल नहीं है. वाई? बिकॉज द 7 इज गिविंग अस द रिजल्ट द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स. सही, गिवन ऑप्शन में ये इंडिविजुअल वेक्टर में 7 न्यूटन, अगर 7 न्यूटन नहीं होता तो इसकी जगह 3 न्यूटन हो सकता था. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. So correct option is option D in this case. Now we are having only one question from paper 2 क्योंकि last 7 years में paper 2 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है जो कि अक्टूबर नवंबर में आया है. 2017 के सीरीज 2 में मिलेगा ये क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है the scenario of the question is 2 small tugboats are pulling a large ship in a harbor. Figure 1.1 represents the view from the above, shows the direction of the forces on the ship. ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को बताया जा रहा है जो कि 49,000 न्यूटन दोनों टगबोट्स अप्लाई कर रहे हैं और ये एंगल बना रहे हैं 20 डिग्री का. ठीक है, और ये शिप को ड्रैग करने के लिए ये कोशिश की जा रही है. और बताया जा रहा है सेम जो डायग्राम में मेंशन है, ईच ऑफ द टग बोट्स इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 49,000 न्यूटन ऑन द शिप. फिर आगे क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है दैट इज आस्किंग अस डिटरमाइन द बाय ग्राफिकल मेथड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस एंड स्टेट द स्केल यूज्ड. हमको यहाँ पे ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है और इसमें एक सुइटेबल स्केल जो है जिसको हम फॉलो करेंगे उसको भी हमें मेंशन करना होगा. और ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए. सो वी कैन नॉट लूज दीज मार्क्स. ओके, नाउ डायग्राम मेंशनड है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी तो नहीं होता, बॉडी को हम किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और स्केल जो हम चूज किया है वो 49,000 न्यूटन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 4.9 सेंटीमीटर लाइन. क्यों हमारे लिए पॉसिबल नहीं है 49,000 न्यूटन का यहाँ पे 49,000 का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें. और वी कैन नॉट ड्रॉ फोर्स. ठीक है, हम फोर्स के इक्विवेलेंट लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द पेपर. सो यहाँ पे मैंने क्या किया है देखते हैं. अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन नहीं है, सीरीज 2 का. सो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ शिप. अब शिप को देखते हुए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया मैंने शिप के साथ. अब ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ क्यों किया गया है, ताकि हम एंगल मेजर कर सकें, एंगल ड्रॉ कर सकें. यानी 4.9 सेंटीमीटर के ऊपर और नीचे इस रेफरेंस लाइन के ऊपर भी एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा 4.9 सेंटीमीटर का, और इस रेफरेंस लाइन के नीचे भी एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा 4.9 सेंटीमीटर का. अगर तुम इसको प्रीवियस वीडियो से यानी 1.1 के टॉपिक से अगर रिलेट करते हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट कि हम इजीली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे कि हाउ वी नीड टू ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द डायग्राम. सी, अब क्या करेंगे हम, ये जो किसी एक वेक्टर को हम सेकंड वेक्टर ले लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर. और सेकंड वेक्टर के पैरेलल हम एक डॉटेड लाइन में वेक्टर ड्रॉ किया विद द सेम मेजरमेंट. ठीक है, ये पैरेलल हो गए एक दूसरे के. सिमिलरली इस वाले वेक्टर के भी पैरेलल हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइंस में. ठीक है, एंड ऑरिजिन से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग एज द डायगोनल. ये जो लेंथ बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, इसकी डायगोनल को ड्रॉ कर देना. ड्रॉ करने के बाद इसको मेजर करना. एंड क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू जो है वो सेम है इंडिविजुअल वेक्टर्स की, सो इट कैन नॉट बी इक्वल
to the resultant vector cannot be equal to the largest vector. Largest vector तो यहाँ पे है ही नहीं. So it can be more than 4.9 centimeter. ठीक है? But it should be smaller than 9.8 centimeter. Why? क्योंकि इन दोनों का सम जो है 9.8 बनेगा. 4.9 इस वेक्टर का, 4.9 इस वेक्टर का. ठीक है? So अगर हम इसको न्यूटन के फॉर्म में लिखते हैं तो it would be 98,000 न्यूटन. So it should be less than 98,000 न्यूटन. ठीक है? जबकि इसकी वैल्यू जो है it should be greater than 49,000 न्यूटन. That means कि जो लेंथ ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पे डायगोनल है, it should be smaller than 9.8 centimeter or it should be more than 4.9 centimeter. ठीक है? So this will be the range. और कोई भी वैल्यू आता है इसके दरमियान तो that can be considered as correct. But remember, एरो जो है हमेशा डायगोनल जो है हमेशा ड्रॉ करके फ्रॉम द ऑरिजिन. Thank you for watching me.